how important is it to have like a diverse set of skill set and experience? Because nowadays we see that, you know, there are a set of people who believe that you should be committed to working for, like, you know, one company or one place, but there are others who think that you should keep on experimenting, you should try one thing out, and if you don't like it, you can just leave it and you can try something else. So what do you think? Like, do you think that because you have so much experience in so many different things, that now you are a lot more like equipped to be at anywhere you want because you are so familiar with so many different things? So what do you think about that? I think the fundamental is when you are entering into your professional career. So definitely professional career mein aapke, you have to be very clear what you really want to attain or achieve in the next 5 years. So don't put it like next year or next 2 years. You have to have a clear roadmap of 5 to 10 years maybe. When I started my career, or very early stage of career, I would say, the question was, what you want to achieve in your life? And coming from a business family background, हमारे पास बड़ा simple सा इसका जवाब होता है, how I can create maximum value for the customer. And why we, in a business family, we talk about the customer value, because whatever the earning you get end of the day, it's a share of the value you create for your own customer. So अगर हलीमा के हम example लें and you are entering into the profession, so rather than starting point कि आपने किस organization में जाना है और कितनी salary लेनी है या आपने किस तरह अपनी practice शुरू करनी है और क्या आपका fee structure होना चाहिए, आपका पहला question ये होना चाहिए कि what you really want to do in your life, आप क्या achieve करना चाहते हैं next, how you want people to remember you when you are not there. Let's say 100 years के lifespan पे अगर हम बात करें, तो what you want your kids, your next generation, your society, your friends to remember you for. If the answer is that they want you to, if you want them to remember you as a best expert in the profession you are doing, so it ultimately brings you to the same thing. How you can create the maximum value for the customer, and the customer could be employer, customer could be the customer of an employer. Let's say अगर आप नेस्ले की बात करें, तो एक एटीट्यूड जो हमें डेवलप करना पड़ता था वो ये था कि जो रिटेल पे, फॉर एग्जांपल कारफूर में या मेट्रो में जो कस्टमर शॉप कर रहे हैं, and I'm a finance guy, right? So I was working in a finance, but I have to think about it कि वो कस्टमर जो नेस्ले की प्रोडक्ट मेट्रो के फ्लोर से उठाने लगा है, how I'm creating a value for them, मेरा उसमें उस पूरी वैल्यू चेन में क्या रोल है, and how I can keep improving that. वो चाहे मुझे अपने जो कॉलीग्स हैं, अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं इंटरनली, उनको बेहतर सपोर्ट करना है ताकि वो उस कस्टमर को सपोर्ट कर सके. सो एंड ऑफ द डे जितनी आप कस्टमर के लिए वैल्यू इंक्रीज करेंगे, उसी लिहाज से एक सर्टेन वैल्यू आपके पास वापस आ रही है. और सैलरी को तो मैं हमेशा कहता हूँ, उसकी सैलरी आपका तकरीबन 2.5% वैल्यू होती है. सो सेल्स में तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर आपकी ₹1,00,000 की सैलरी है तो आपको 40 लाख की सेल करनी है, एंड दैट वर्क्स इन एवरी. सो जो भी आप वैल्यू क्रिएट करेंगे किसी के लिए, उसका 2.5% वापस आना है. So, अगर आप day 1 पे अपना फोकस बड़ा क्लियर रखते हैं कि whatever you do, you have to evaluate कि आपने, और आपका सवाल होना चाहिए कि क्या आपने अपने कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट की, और उसके लिए आपको अपना कस्टमर आइडेंटिफाई करना पड़ता है. So, ये पहला सवाल है जहां आप कैरियर में जाने लगे. So, it's not about the company, it's not about the salary, it's about what really you want to do in your life. और फिर उसके स्टेप्स आएंगे. अच्छा, अगर मैंने ये वैल्यू क्रिएट करनी है, या मैं this is something which I want to do, which companies I can serve better? क्या मैं अपना काम शुरू कर लूं या मैं इन कंपनीज में नेटवर्क जनरेट करूं? ठीक है, क्योंकि आपने अगर जॉब भी करनी है तो जॉब these days around the world ये वो सारे एक नेटवर्क के थ्रू ऑपरेट हो रहे होते हैं कि आपके पास नेटवर्क के थ्रू इंफॉर्मेशन आ रही होती है, उस इंफॉर्मेशन को आप रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, उसी नेटवर्क के थ्रू आपकी रेपुटेशन जो है वो वापस एम्प्लॉयर या हायरिंग मैनेजर के पास जा रही होती है, और उसी बेस पर वो डिसीजन कर रहे होते हैं. कोई इंसान 1 घंटे के इंटरव्यू में डिसीजन नहीं कर पाता. सो प्रैक्टिकली आपकी या तो रेपुटेशन उनके पास पहले होती है, या वो जो फर्स्ट 30 सेकंड जो आपके साथ इंटरेक्ट करता है उसमें जो आप अपनी रेपो बिल्ड करते हैं उसकी बेस पे वो डिसीजन कर रहे होते हैं, बाकी सारा वैलिडेशन प्रोसेस होता है. सो टू ब्रिंग क्लैरिटी कि आपने लाइफ में क्या करना है, बिलीव मी दैट विल ब्रिंग अ वेरी क्लियर रोड मैप कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा और आपको कितनी एफर्ट करनी पड़ेगी उस लेवल पे जाने के लिए. लेकिन वो जो क्लैरिटी होती है कि एंड ऑफ द डे व्हाट यू रियली वांट टू अचीव, दैट कीप यू मोटिवेटेड, दैट कीप यू गोइंग. हम लोग सम टाइम हम बड़े इनिशियल स्टेज की जो कंफ्यूजन होती है कि मैं किसको जानता हूँ, इसको नौकरी मिल गई है, उसको नहीं मिली, पता नहीं ये अच्छी चीज है नहीं है, वो जो कंफ्यूजन वाली स्टेट होती है वो इसीलिए होती है कि हमारे पास एक लॉन्गर टर्म गोल नहीं होता और उसके लिए हमने वो एफर्ट प्लान नहीं की होती. और सबसे जो एक चीज आजकल हम लोग मिस कर रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स में जो हम चीज देख रहे हैं, वो है नेटवर्किंग एबिलिटी.
You have to go out and you have to meet people beyond Facebook, Instagram and WhatsApp. क्योंकि वहां पे आपने अपनी एक रेपुटेशन बनानी होती है। एसीसी में तो हमारे बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अगर आपका नेटवर्क वीक है तो आपकी नेटवर्थ वीक है। एंड नेटवर्क डजंट मीन रेफरेंसेस, नेटवर्क मीन हैविंग दैट इंफॉर्मेशन, दैट सपोर्ट स्ट्रक्चर, और जिसके थ्रू आप अपने ओवरऑल कैरियर गोल्स भी अचीव करते हैं और ओवरऑल लाइफ गोल्स भी अचीव करते हैं। did